Good morning. I am going to teach you the explanation of third stanza of the poem The Fountain by James Russell Lowell. I am writing it and I hope that you will read it carefully and you will try to understand it. Into the starlight, rushing in spring, rushing in spring. Happy at midnight, happy at midnight. Happy at midnight, happy by day. Happy by day. Ever in motion, ever in motion, ever in motion, blithesome and cheery, blithesome and cheery. Still climbing, still climbing, still climbing heavenward, heavenward. Never a weary, never a weary. The stanza number 3. Into the starlight, rushing in spring, happy at midnight, happy by day. The poet tells us that into the starlight. Starlight means तारा रोशनी, माने तारे की रोशनी. Into the starlight, तारों की रोशनी में. Rushing in spring. रस मीन्स होता है दौड़ना. क्या? दौड़ना. रस मीन्स दौड़ना, रन. रसिंग स्प्रे. स्प्रे मीन्स होता है फुहार रूप में, बौछार रूप में. कहने का मतलब तारों की रोशनी में फवारे का जल बौछार रूप में या फुहारा रूप में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है. क्या करता है? तारों की रोशनी में एक झरने का जल फुहार रूप में या बौछार रूप में दौड़ता रहता है, चलता रहता है. हैप्पी एट मिडनाइट. हैप्पी मीन खुशहाल, ग्लैडसम. एट प्रीपोजिशन है. मिडनाइट यानी फिक्स समय के लिए, निश्चित समय के लिए. एट तो एट मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स होता है मध्यरात्रि, जिसको कहते हैं आधी रात्रि. और आधी रात्रि के समय खुशहाल रहता है. माने फवारे का जल जब अर्धरात्रि हो जाती है, रात्रि के 12 बज जाते हैं, तो कैसा हो जाता है? खुशहाल हो जाता है. हैप्पी बाय डे. और पूरे दिन भर खुशहाल रहता है. जैसे यदि हम सुबह में अच्छा कार्य कर लेते हैं और हम जो है अपने शरीर को, मन को, आत्मा को निर्मल कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो पूरा दिन हमारा जो आनंदित और खुशहाल बीतता है. इसी तरह से जो है वो मध्य रात्रि के समय फवारे का जल खुशहाल हो जाता है और ये खुशहाली उसकी जो है पूरे दिन भर बनी रहती है. तो फिर से इसको देख लीजिए. इनटू द स्टारलाइट, रसिंग स्प्रे. तारों की रोशनी में फवारे का जल फुहार रूप में दौड़ता रहता है, चलता फिरता रहता है. हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे. मध्य रात्रि के समय एक फवारे का जल खुशहाल हो जाता है, माने वो प्रसन्नचित रहता है. और हैप्पी बाय डे,
और पूरे दिन भर खुशहाल रहता है। कहने का मतलब पूरे दिन भर आनंदित रहता है, मधुर गति से, स्लो गति से जो है वो चलता रहता है। नाउ आई एम गोइंग टू teach the explanation of this stanza into English, and I hope that you will understand it carefully. When it is the time of night and the stars are shining in the sky, when it is the time of night and the stars are shining in the sky, the water of a fountain runs slowly and slowly, sweetly, happy at midnight. When it is the time of midnight, at that time the water of the fountain becomes gladsome, happy. It flows slowly, sweetly, and in this way, throughout the whole day, the water of the fountain runs sweetly and slowly. Once again, when it is the time of night and the stars are shining in the sky, at that time the water of the fountain runs in the form of spray, in the form of showers. And when it is the time of midnight, at that time the water of the fountain becomes happy, gladsome, and in this way throughout the whole day, from sunrise to sunset, the water of the fountain runs slowly, sweetly, and it remains happy throughout the whole day. Now, stanza number 4. Ever in motion, blithesome and cheery. Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary. Ever means हमेशा, always, without taking any stoppage, continuously. Ever in motion, motion means speed, गति. Ever in motion, हमेशा गति में रहता है. कौन? एक फव्वारे का जल हमेशा गतिमान रहता है, चलता रहता है, स्पीड में रहता है. It does not take any rest. Ever in motion, हमेशा गति में रहता. motion means speed, गति. blithesome and cheery. blithesome का मतलब जो खुशहाल और cheery means आनंदित. ये हमेशा जो है फुर्तीला रहता है, खुशहाल रहता है. स्टिल क्लाइंबिंग, स्टिल मीन्स हमेशा, हमेशा चढ़ता रहता है. ऑलवेज क्या करता है? चढ़ता रहता है. कहाँ? ही मेनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द अप. ये हमेशा ऊपर की तरफ जो है, आसमान की तरफ जो है, वो क्या करता रहता है? चढ़ता रहता है. मीन्स इट रिमेन्स ऑलवेज इन डेवलपमेंट, इन एडवांसमेंट. नेवर वेरी. नेवर मीन्स कभी नहीं. एवर का अपोजिट है. एवर मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं. और ए वेरी मीन्स होता है थका हुआ, टायरसम. मैंने फव्वारे का जल जो है कभी भी थकता नहीं है. फिर देखिए, एवर इन मोशन, फव्वारे का जल हमेशा गतिमान रहता है, गति में रहता है या चलता रहता है. ब्लिसम एंड चेरी, ये हमेशा जो है सजीव रहता है, खुशहाल रहता है. स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और फव्वारे का जल हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, हमेशा जो है प्रगति में रहता है, हमेशा गति में रहता है, हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है. नेवर वेरी. और एक खासियत ये भी है, एक विशेषता ये भी है फव्वारे के जल में, ये कभी थकता नहीं है. कहने का मतलब चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये हमेशा जो है चलता रहता है. इन इंग्लिश, द वाटर ऑफ द फाउंटेन remains itself always in motion. It has a good speed always. It does not take rest. And in this way, the water of the fountain becomes lively, active, and it is always contented, satisfied, and gladsome. And the water of the fountain goes up always. It does not take stop. It remains in speed always.
never vary. And the water of the fountain does not take any rest at any time. It is not tiresome at any time. It is always in motion. It is always in advancement, progress, and it does not like to take any rest at any time. Once again, the water of the fountain remains itself always in speed. It does not take rest, and it is always active, and it is always gladsome, and it is always going up. It climbs toward the sky always. Means it has itself in advancement always, and it is not tiresome at any time. It does not like to take any rest at any time. It's a quality that it does not become tiresome at any time. Now I am going to close this video, and I hope that you will read it, study it carefully, and you will keep it in your mind and heart safely. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बस 12 मिनट. Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward. Upward or downward. Upward or downward. Motion thy wrist. Motion thy wrist. Full of nature. Full of a nature. Full of nature. Nothing can tame. Nothing can tame. Nothing can tame. Changed every moment. Changed every moment. Moment. Ever the same. Ever the same. Ever the same. ठीक. Stanza number 5. Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. In all poem, the poet has told us the different qualities, the different activities of a fountain. In stanza number 5, the poet tells us that glad of all weathers. Glad means खुशहाल, happy. Of all weathers means होता है हर सीजन, हर मौसम. weathers means होता सीजन. माने फवारे का जल जो है हर सीजन में, हर मौसम में कैसा रहता, खुशहाल रहता है. चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे शिशिर हो, चाहे हेमंत हो, चाहे बसंत हो, सभी ऋतुओं में फवारे का जल खुशहाल रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्नचित रहता है. स्टिल सीमिंग बेस्ट. स्टिल मीन्स ऑलवेज. सीम मीन्स होता प्रतीत होना, टू लुक, टू अपीयर. बेस्ट. बेस्ट मीन्स सर्वोत्तम, जो गुड की जो है सुपरलेटिव डिग्री है. गुड, बेटर, बेस्ट. और ये हमेशा जो है वो सबसे अधिक सुंदर लगता रहता है. फव्वारे का जल हर मौसम में खुशहाल रहता है और ये हमेशा सर्वोत्तम लगता है, सबसे सुंदर लगता है, क्योंकि ये हर सीजन में खुशहाल रहता है. अपवर्ड और डाउनवर्ड. फव्वारे का जल चाहे ऊपर जा रहा हो और चाहे जो नीचे की तरफ आ रहा हो, चाहे अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा हो,
चाहे नीचे की तरफ आ रहा हो, कैसा होता है? मोशन दाई रेस्ट। मोशन मीन्स होता है स्पीड या गति, और दाई मीन्स होता है योर्स। क्या? योर्स। और रेस्ट मीन्स आराम, माने गति ही तुम्हारा आराम है। माने जो फवारे का जल है, इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी या विशेषता ये है कि ये जो है आराम नहीं करता है। माने गति ही, हमेशा चलना ही, हमेशा प्रगति में रहना ही इसका आराम है। इसका एक जो है एक प्राकृतिक स्वभाव बन गया है। ये जो है अपनी गति को, अपने चलने को ही, अपने जो है वो लाइफ को ही जो चलती रहती है उसको ये आराम समझता है। तो फिर देख लीजिए, ग्लाइड ऑफ हॉलीवेदर, फवारे का जल हर मौसम में खुशहाल रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सर्वोत्तम जो है महसूस करता है, प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, फवारे का जल चाहे ऊपर की तरफ जा रहा हो, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। मोशन डायरेस्ट, ये जो है अपनी गति को ही आराम समझता है, अलग से जो है वो आराम नहीं करता है, बल्कि उसी गति को, गति में चल माने जो है वो लगे रहना ही वो आराम समझता है। इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस दैट ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर्स, either it is the time of rainy season, or it is the time of winter, or it is the time of summer. In all seasons the water of fountain is happy. In all seasons the water of fountain is happy, and it looks in the best way always. It looks to be the best always. Either it is the time of rainy season or winter or summer, it looks always the best. Means there is no anything which can be compared to a fountain, upward or downward. Either the water of the fountain is going up or it is coming downward. It does not take rest. It feels that when it is motion, it is its rest. It does not like to take any rest. It remains itself always in speed, and it appears that its speed is only the rest period. It does not take any extra rest period. Stanza number 6. Full of nature, nothing can tame. Change every moment, ever the same. Full of nature. Nature means होता है स्वभाव। क्या? स्वभाव। फुल ऑफ नेचर, फवारे का जल हमेशा प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण होता है। माने फवारे के जल की जो है विशेषता होती, जो प्राकृतिक गुण होता है, जो ईश्वर प्रदत्त गुण है, माने जो है धीरे धीरे चलना और मधुर गति में चलना और सबको आनंदित रखना, हमेशा जो है उन्नत करते रहना, ये जो है वो हमेशा अपने प्राकृतिक गुणों से जो है वो भरपूर होता है। ये अलग से कोई जो है वो अपना जो है वो अहंकार या जो है वो कोई जो है अपना अलग से जो है कोई गुण नहीं अपनाता है। जो प्रकृति ने इसको दिया है वो हमेशा प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण होता है। द वाटर ऑफ द फाउंटेन इज ऑलवेज फुल ऑफ नेचुरल क्वालिटीज। नथिंग कैन टेम। नथिंग माने कोई चीज नहीं। कैन मॉडल वर्ब है, कैन मीन सकना। टेम का मतलब होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल या पालतू बनाना। माने दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फवारे के जल पर जो नियंत्रण रख सके, इसको अपना जो है अपना अधिकार जमा सके, इसको अपने काबू में रख सके, इसको जो है रोक सके। माने ये हमेशा जो है अपनी ही गति में जो है वो चलता रहता है। फवारे का जल जो है वो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये जो है वो ऑटोमेटिकली जो चलता रहता है। चेंज एवरी मोमेंट। और एक खासियत ये भी है, एक विशेषता है भी फवारे के जल की, ये जो है वो हमेशा जो है बदलता रहता है। माने एक पानी का जो है एक बूंद आया और वो आगे बढ़ गया, दूसरा बूंद आया, तीसरा बूंद आया, इसी से जो है लगातार जो है ये परिवर्तित होता रहता है। माने परिवर्तन। और दूसरी चीज ये है कि ये सूर्य की रोशनी में कुछ और ढंग से लगता है, चंद्रमा की रोशनी में कुछ और ढंग से लगता है, तारों की रोशनी में कुछ और ढंग से लगता है, मध्य रात के समय इसकी शोभा और जो है कुछ हो जाती है। ये अपने में हमेशा जो है कुछ न कुछ जो है परिवर्तन लाता रहता है। एवर द सेम। लेकिन रहता क्या है? वो जो है फवारे का जल ही रहता है। ये जो है वो
क्या रहता है? एवर मीन्स हमेशा, सेम माने वही, फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। द वाटर ऑफ द फाउंटेन हैज नेचुरल क्वालिटीज ऑलवेज, which qualities have been given by God to a fountain, it remains these qualities always in reserve. And there is no any power in the world which can control the speed of the fountain. It is always in motion. It cannot be controlled by anything in this world. It is out of control. And the water of the fountain is always in changing position, because water runs at every time, so it is always in changing condition. And but it is the great quality of the fountain that it is always the water of the fountain, and it keeps itself always in the same condition. माने it does not change itself according to the season. It remains always the water of the fountain only. Thank you. जय हिंद, जय भारत।